Yes, so now we can start for the celebration of Republic Day. And I'm very happy that so many people have already joined the meeting. So, anchors, please start. Okay, sir. Good morning to all present over here. I, Vishwajit Kumar Sinha. And I, Astha Kumari, would like to welcome you all. How blissful this evening is, where we are gathered to celebrate our 73rd Republic Day. Now, I would like to invite our chief guest, Mr. Sanjay Kumar Sir, Director PSPL Global. He has been managing this company for past few years. A great round of applause for him. After uncountable sacrifice of our freedom fighters, we got independence on 15 August 1947. And because of it only, we can gather and speak freely today. We owe a great thanks to all of them. I salute to all those freedom fighters who sacrificed their lives for our freedom. On this day, in 1950, our constitution came to effect. On this day, the President of India hosted flags in New Delhi. It is the first time when Republic Day celebration will be very short and simple due to pandemic situation. A big parade is held at India Gate in New Delhi. The president gives award to the brave soldiers and people on this day. The Republic Day teaches us to live in unity and peace. अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, सलाम करो इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है. सर हमेशा ऊंचा रखना है इसका जब तक दिल में जान है. Now without wasting time, let's start our program with a parade. What a playful parade. I wish that I could also go. Now, I would like to invite Ankit for the role play of Bhagat Singh. Hello everyone. King Bhagat Singh, was a freedom fighter. I was born in India to a Sikh family in Punjab. I was born on 27 September 1907 to a Sikh family. I was a Sikh.
and I was deeply involved in political activities. But I quit my school at the age of 13 years. Yes, only at the age of 13 years I quit my school. This all I have done for independence, to make India independent from British rulers. This all I have done for independence. Everything I have done for independence, to make India an independent country. I have also and I have also killed a person, the British ruler, but I died on 23rd March 1931 due to hanging. Thank you. Jai Hind. Very good, Ankit. Now, I would like to invite our chief guest, Mr. Sanjay Kumar Mishra, sir, for motivational speech. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इस आपके इस फंक्शन में पार्टिसिपेट होने को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. Same to you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आई होप आप लोगों ने अच्छा से एंजॉय किया होगा जो हमारा 73rd रिपब्लिक डे है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने अच्छे से एंजॉय किया. Yes, sir. Yes, sir. आप में से कोई एक मुझे Yes, sir. रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है? सर क्योंकि सर इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. ओके, बना कब था ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना ये? Constitution लागू हुआ था. Sir, 2 years ago. Sir, from 1950, 2 years ago. सॉरी, सर 1950 सर 2 year 11 month 8 days ago सर ये बनने की शुरुआत हुई थी. ओके. तो मैं ये जानना चाहिए क्यों ये लागू क्यों किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए? सर ताकि इंडिया सर एक बैलेंस में रहे, वरना सर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है इंडिया. ओके, ग्रेट. और किसी का कोई व्यू है इसमें ये? Yes, sir. सर जैसे कि हम लोग जानते थे कि हमारे राज्य को मतलब हमारे देश को 1947 में आजादी मिल गई थी सर, परंतु कोई भी एक देश को चलाने के लिए एक अनुशासन की जरूरत पड़ती है सर, जो हमारे संविधान में लिखा रहता है सर. हमारे संविधान में वो सब कानून लिखे हुए हैं सर, जिससे हमारे देश को चलने में आसानी हो सर, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया. एक्सीलेंट आंसर, ग्रेट. सो आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया इस 73rd जो हमारा रिपब्लिक डे था ये. सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं. एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर जो कि लास्ट 3 years से मैं अपनी जर्नी को बढ़ाया हूं अपने यहाँ पे ये. सो आप लोगों को देख के एक जो अंदर में एक काइंड ऑफ एनर्जी या फिर जो आती है कि अभी का जो इंडिया है, पहले आप लोग जो पहले का इंडिया थी उसमें इतना डिजिटल नहीं था कोई भी चीज. यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि पहले कोई ना इतना यूट्यूब, ये जो भी आप लोग हम लोग जूम अटेंड किए हुए हैं यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं था पहले. ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है क्योंकि हमारे कंट्री के यूथ लोग आगे बढ़े हैं और इंडिया को एक डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट किए हैं यहाँ पे ये. तो ये सब तभी मुमकिन हो पाता है जब आप लोग अच्छे जो भी यूथ लोग थे अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, आगे अपना वो एक एम्बिशन लेके आगे बढ़े और एक कंट्री को जो इस एक लेवल पे लेकर आना था. पहले आप गूगल पे देखोगे, चेक करो इसमें, तो इंडिया का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था डिजिटली में ये. बट लास्ट फ्यू अराउंड 4 to 5 years में ये आप खुद भी इसको गौर करते होगे कि कितनी चीजें ईज हो गई है. आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, मोबाइल पे क्लिक करोगे सामान घर पे पहुंच जाता है ये. सो मैं भी वैसे ही एक दो बड़े बड़े ब्रांड नेम हैं जिनको शायद आप लोग जानते होंगे, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ कि कितनी ये लोगों को ईज कर दिया है कि आप वे ऑफ लिविंग बोलो या फिर अपना कितना आसानी से आप कोई भी चीज को आप हैंडल कर पा रहे हो चीजें. सो आप लोगों से बस यही एक है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जिस लाइन में जाना है करो अच्छे से, बट जो भी करो फुल डेडिकेशन के साथ करो ये. और अभी का जो अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बोलते हैं कि नौकरी करने वाला मत बनो, नौकरी देने वाला बनो.
सो उस मोटो से आप आगे बढ़ो आप ये, और आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ के ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे और मैक्सिमम नौकरियां लोगों को लिए निकाल कर देंगे कि वो आप आके अपने यहाँ काम करें वो लोगों। ठीक है, तो आप लोग अपना जो प्रोग्राम है आगे कंटिन्यू कीजिए इसमें आप लोग, ये मैं हूँ यहाँ पे ये। थैंक यू। Thank you, sir, for motivating us. Now, I would like to call Divyanshu brother for his motivational speech. Vishwajit, I think it's not audible. Oh, sorry. Extremely sorry. Sorry for the inconvenience. मैं दिव्यांशु गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के गणतंत्र दिवस विषय पर चंद शब्द आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। इसके पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई भी दे देना चाहता हूँ। हम सभी आज अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में बहुत खुशी और गर्व के साथ मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन राष्ट्र का अपना कोई संविधान नहीं था। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आज इस संविधान की वजह से हमारा देश पूर्ण गणतंत्र है। इस दिन सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर देश की शहीदों श्रद्धांजलि देते हैं। ये लोकतांत्रिक देश में रहना हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं अपना यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तरह देश को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks, brother, for motivating us. Now, I would like to invite Sivangidi, Samiksha, and Sweta to entertain the audience with their marvelous performance. निर्णय
यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने ऊपर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग बनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। Let's have a huge round of applause for all the performers. They surely put in a lot of effort to entertain us. Now, I would like to invite Ms. Vajit Kumar Sinha for a wonderful speech. Over to you, Ms. Vajit. Yes. Dreamers are the one who can face the reality. Transformations take time. The dream of 1857 was fulfilled in 1947. I support each and every Indian who aspires for the betterment of our nation. A very pleased evening to our chief guest, Sanjay Kumar sir, our teachers, Sayed sir, Nitish sir, and my dear friends. Myself, Vishwajit Kumar Sinha, and today I am here to speak on Republic Day. Today is 26 January, our Republic Day, a day filled with patriotism, great affection, and respect towards our motherland, India. This feeling awakens in every Indian mind. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Republic. What is Republic? What is the meaning of Republic? The word Republic is derived from the Latin word res publica, which is related to people. Republic is something that is connected to the people. Republic is something that is connected to the people. It is a system in which the country belongs to the people. The governments and the democracy is the greatest means for restoring this kind of system. And the Lincoln sir has explained this system in very simple words. In very simple terms, as the democracy is for the people, by the people, and of the people. And I am very proud to share with you all that India is the largest democracy in the world. But by only saying, can a country become republic? Of course not. For this, it needs a constitution. And on this day, the constitution was implemented.
There were many peoples who played an important role to make a constitution. I am very happy that I live in a democratic country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Very good, Viswajit, for such an informative speech. So now I would like to welcome Om Krishna for speech. नमस्कार, मैं ओम कृष्णा राय आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं अपनी मन की भावना अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें। आज़ादी सॉरी नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में जो थी ज्वाला उसे याद कर लें। जिस कश्ती में सवार हो आज़ादी पहुंची थी उस किनारे पर, उन देशभक्तों के खून की वह अविरल धारा याद कर लें। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ हमारा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह राष्ट्रीय त्योहार सभी भारतीयों द्वारा बेहद खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन अलग अलग रेजिमेंट भारतीय तीनों सेनाएं जल थल नभ इस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Very nice, Om Krishna. Now I would like to welcome Abhijit for Hindi poem. मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं आज एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है देशभक्ति। 3 रंग का नहीं बना ये वस्त्र, ये ध्वज है देश की शान। हर भारतीय के दिलों का ये है स्वाभिमान। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही है हिंद की जान। 3 रंगों से बना ये है अपना हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद। Such a nice poem, Abhijit. Now I would like to welcome Mr. Nidhi sir to sing a song with his melodious voice. Nidhi sir, over to you. Okay, first of all, very happy Republic Day, and I would like to dedicate a song from this auspicious day. Song name is सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। ओ संतरी हमारा, ओ पाशवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से
ये रस के जहाँ हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम है वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। थैंक यू एंड जय हिंद। Thanks for a patriotic song, sir. We are glad to have a teacher like you. A great round of applause for him. Now I would request Anshika Di for an English poem. To all the students, teachers, and parents present here. Firstly, I would like to wish you all a happy 73rd Republic Day. Today, I'm here before you to recite a poem on India. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and are source of prosperity. Let's for it work hard, for its safety be on guard. With this, I would like to conclude by saying that we should be proud of being born in India and we should value our country, India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks, Ansikadi, for your courageous poem. Now let's hear the story of Lieutenant Saurabh Kalia by Sachem Bhaiya. तेरी नगम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर धंधा तेरी जिंदा झूमता है शाला या सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तूने। ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई दल है क्या तेरी दूर से बड़ी। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने भारत माँ के आंचल में जन्म लिया, जहाँ कई वीरों ने शहादत दी है इस माटी के गौरव को बचाए रखने के लिए। और अगर मेरी इस माटी पे किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो कसम से मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और अगर हमारे वतन की सुरक्षा में हमारे सर भी कट गए तो कोई गम नहीं,
बल्कि हमें गर्व होगा कि हमारे वतन का सर हमने झुकने ना दिया। आप लोगों को बॉलीवुड के हीरोज और हीरोइंस का नाम तो याद होगा, कभी समय मिले तो उन बेटों की शहादत के बारे में भी पढ़ लेना। कितना अजीब समय है, जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी कुर्बानी दी, हम उनका नाम तक नहीं जानते। आज मैं एक ऐसे वीर की दास्तां सुनाने वाला हूँ जिन्हें सब भूल चुके हैं, लेकिन वो वीर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। यह कहानी कारगिल वॉर के पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया की है, जिनके बलिदान से ही कारगिल की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। जरूरी नहीं कि जिसे मेडल मिले वही वीर कहलाए। जब आप इनकी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इन जैसे वीरों को परमवीर चक्र क्यों नहीं मिला। कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को हुआ था। उनके पिता का नाम एनके कालिया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। कैप्टन कालिया का बचपन से ही सपना था कि वे फौजी बने और अपने वतन की हिफाजत करें। और कैप्टन सौरभ कालिया बचपन से पढ़ाई में ही बहुत तेज थे। आईएमए में ट्रेनिंग के बाद सौरभ को 12 दिसंबर 1998 को 4थी जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था और उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में होती है 31 दिसंबर 1998 को। और जाते समय उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, देखना कि मैं एक दिन ऐसा काम करके आऊंगा कि पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलिखित समझौता था, जिसके तहत सर्दी का मौसम आते ही दोनों देश की सेनाएं अपने पोस्टों और बंकरों को छोड़ के पीछे हटेंगी और गर्मी का मौसम आते ही दोनों देश की सेनाएं अपने अपने बंकरों पे वापस आएंगी। लेकिन मई 1999 में पाकिस्तान ने इस समझौते के साथ ही छल कर दिया। ताशी नामग्याल नाम के गरड़िए ने बंजू टॉप पर हलचल देखी और उसने बिना देरी करते हुए भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। नजर आई है, कोई काला रंग का बेल लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर टूट रहा था, बर्फ फट रहा था। उन दिनों लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की उम्र करीब 22 साल रही होगी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को पता लगा कि कारगिल में हलचल है, तभी 4थी जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के अंडर पेट्रोलिंग पर भेजी गई कि क्या सचमुच वहां कोई हलचल है या फिर नहीं। और उसी दौरान लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कैप्टन बनाया गया। जब कैप्टन कालिया बजरंग पोस्ट तक पहुंचते, तब तक उन पर फायरिंग हो गई। कैप्टन कालिया को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि घुसपैठ करने वाले सैनिक पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन भारत को पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। कैप्टन कालिया के पास उतना गोला बारूद नहीं था कि वो दुश्मनों का सामना कर सके, क्योंकि एक पेट्रोलिंग पार्टी के पास कम मात्रा में गोला बारूद होता है। लेकिन कैप्टन कालिया ने तभी भी पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो युद्ध की तैयारी करके आया था। उन पाकिस्तानियों ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया को चारों ओर से घेरकर बंदी बना लिया। ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है। मुसद्दक़ा फौजी जराये से खबर मौसूल हुई है कि हमारे जाबाज रेंजर्स ने काक्सर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर पाकिस्तानी सरहद अबूर करने वाले 6 भारतीय जवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। तहवील में लिए जाने वाले कैप्टन का नाम है सौरभ कालिया। और उसी समय लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का संपर्क बेस कैंप से भी टूट गया। लेफ्टिनेंट कालिया, come in over. उन कायर पाकिस्तानियों ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इतना बुरा किया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इन पाकिस्तानियों ने हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को अमानवीय यातनाएं दी। उनके कानों में गरम रॉड डाल दी, उनके कानों के पर्दों को फाड़ दिया गया, उनकी आंखें तक फोड़ दी गईं और निकाल ली गईं, उनके शरीर को सिगरेट से जलाया, दांतों को तोड़ दिया गया, उनके होठों को काटा, उनकी नाक तक काट ली गई, उनके जीभ को काट लिए गए, उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए और उनके सर, पैर और हाथों की हड्डियां तक तोड़ दी गईं। और अंत में कैप्टन कालिया को 13 गोलियां मारकर इन पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी। सांस थमती गई, नस जमती गई, फिर भी बढ़ के कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ
गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर भारत को वापस किया। और जिस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है, तब उनकी मां ने गेट खोला और तब 4 अफसरों ने अपनी टोपी निकाली और उन्हें सल्यूट किया। और उनकी मां की आंखों में आंसू तो तब आ गए जब उनके लाल का शव उन्हें तिरंगे में दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की मां आज भी रोती हैं कि मेरे बेटों के साथ इन पाकिस्तानियों ने कितना गलत काम किया है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के भाई ने भी अपनी माता और पिता को मना किया था कि आप सौरभ की बॉडी ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में थी। जिसके साथ जो किया हुआ था वो सबने देखा, सबको पता था। The 5 soldiers and my brother was the officer, the 6 persons. They were subjected to brutal torture for over 20 days. The face was not even left, I'll say, 1/4 of the actual size of the face. It was so bad. There was nothing on the face. It was like this much. When Saurav's body arrived in Palampur, it was placed in this ground where the people of Palampur paid their last tributes to the soldiers. Since then, we've had our own struggle. We are struggling for the justice, which is a sheer violation of the human rights as per the Geneva Convention. The torture of the soldiers, I don't know why, but nobody in the government seems to do anything about it. The government of India has simply dumped this entire issue. This is the museum my parents have made for Saurabh, and it's more of a temple for us than a museum. Every morning my parents come here and they lit a jyot and agarbatti in front of the image photo of the Saurabh. We have kept all his belongings, his uniforms. There's an alarm clock. There is his Ray-Bans, his watch, his radio, the chess he used to play, his binoculars. आज भी पाकिस्तानी सेना का एक सैनिक सर उठा के कहता है कि मैंने और हमने, हमारे साथियों ने ही कैप्टन कालिया को पकड़ा था। चाहते थे कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं था वो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट थी और उस पोस्ट पर कब्जा करके वो शहरा-ए-लेह जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे। मगर अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया। मगर हुआ ये कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। जरा सोच कर देखिए उस 22 साल के नौजवान ने वो यातना के 22 दिन कैसे बिताए होंगे। उनका शरीर भी तो मांस और खून से बना था, उन्हें भी तो नाजों से पाला गया था, वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा थे। लेकिन उनमें और हमें यही फर्क है कि उनके जबान पे आग और रगों में इनकलाब बहता था। हमें इनके महान बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो वो पाकिस्तान को सारे सीक्रेट्स बता देते भारत के, और भारत
इससे युद्ध में हार भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अंग अंग कटाना सही समझा, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपने वतन से छल करना नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया के पेरेंट्स आज भी अपने बेटे के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें भारत से इंसाफ की मांग है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा करे, लेकिन भारत आज तक वो कर ना पाया। कई सरकारें आई और गई, लेकिन लेफ्टिनेंट कालिया को इंसाफ आज तक नहीं मिला, और उनके पेरेंट्स ये तक कह चुके हैं कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम अपने बेटे के लिए लड़ते रहेंगे, उसके इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया की 22 सालों की जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो लगता है एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अंत में मैं लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कुछ लाइनें समर्पित करना चाहूंगा। कारगिल हड्डियां जलाने वाली बर्फ, पग पग पे साथ साथ हौसला गया, शत्रु दल की चुनौतियों को झेल पाया नहीं, गीदड़ों को देख करके सिंह बौखला गया। कुछ कहते हैं कि चाहता तो बच जाते प्राण, कुछ कहते हैं वीर बांकुड़ा चला गया, वीरता की दुल्हन से ब्याह करके सौरभ राम जाने जाने किस लोक को चला गया, राम जाने जाने किस लोक को चला गया। सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान हो भले, परंतु एक जैसे सबके शरीर नहीं होते हैं, कुछ गुणवान बलवान कुछ धनवान, पैदा कुछ लेके तकदीर नहीं होते हैं। बच्चे तो हजारों जन्म लेते नित्य प्रति, किंतु कैप्टन सौरभ जैसे वीर नहीं होते हैं। अब मैं आखिर में सारे माता पिता, सारे बच्चों और साहिल सर और नीतीश सर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं खड़े हो जाएं और इस परम वीर के बलिदान के लिए इन्हें सल्यूट करें और इनके लिए तालियां बजाएं। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। हर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा, भर गया अलग ही वो उड़ा तेरी खातिर वो रुका है, तिरंगे में है वो फिर और कहाँ होगा, शान से बढ़कर मुझको और यहाँ होगा। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबा वाला था। Sorry for the inconvenience. It was a very brave story of Lieutenant Saurabh Kalia. Now I would like to invite Mohit for the role play of Subhash Chandra Bose.
Hello everyone. I means Subhash Chandra Bose was an Indian freedom fighter and one of the most causes to India freedom. I was born at 23rd January 1897, Odisha, in India, and died in a plane accident on 18 August 1945. I was also known as Netaji. I was the president of Indian National Congress (INC) from 1938 to 1939. I all attempt to get rid of British rule in India during the World War II, and my famous dialogue in every society is that आज़ादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आज़ादी। हिंदुस्तान की आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। It was such a nice act, Mohit. Now, I would like to show you a video made by Alok Bhaiya on Republic Day. Now, let's see our knowledge about the Republic Day quiz conducted by Om. Over to you, Om. So first of all, happy Republic Day to all. So now I am going to conduct
the quiz of 7 questions. So let's check the knowledge of others. So first question is, who is known as the father of the Indian Constitution? The answer can be written in the chat box. It's enabled. So I'm just repeating the question. Who is known as the father of the Indian Constitution? Okay, I can see 3 answers, 4 answers, 5 answers. Yeah, so that answer is correct. The the answer is the Dr. Bhimrao Ambedkar. So now the second question. The Indian Constitution was prepared in how many days? I'm repeating the question. The Indian Constitution was prepared in how many days? Okay, all are some of them are giving wrong and correct. So the correct answer is 2 year 11 month 18 days, or you can say 165 days. No, sorry. 2 year 11 month 80 days only, not 165 days. So question number 4. Sorry, 3. India shows its military might on. The options are Republic Day, Independence Day, Children's Day, Gandhi Jayanti. I'm repeating the question. India shows its military might on Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, Children's Day. Okay, I can see many answers. So the correct answer is the Republic Day. So the fourth question. How many gun salutes are presented to the President on Republic Day? Okay, so all are giving the correct answer. 21 gun salutes are given to the President on Republic Day. Hi, Didi. Okay, the fifth question is, what did the Paramvir Chakra replace when India became a republic? I'm repeating the question. What did the Paramvir Chakra replace when India became a republic? This is an advice. Please don't Google, because some of the questions are that can't be known below class 9 or 10. Okay, yeah, those who are giving the Victoria Cross, it's correct. The answer is Victoria Cross. Hi, Didi. So sixth question. The Republic Day parade starts from. Okay, so I am giving the options also. Red Fort, India Gate, Rashtrapati Bhavan, Vijay Chowk. Hi, Didi. Sorry for interruption, Om. Suni Kumar, please maintain the decorum of the class. Okay, I can see. Okay, though in this full who has given answer, 2 are correct. Mohit and Alok Bhaiya. The answer is Rashtrapati Bhavan. Okay, Samiksha is also correct. So the last question is, last but not least question is,
Name the first person who was invited as the chief guest on the Republic Day parade in India. The options are Malik Ghulam Muhammad, Muhammad Zahid Shah, Ram Abdul Hamid, none of the above. Okay, I can only see the one answer, who is the option one, Malik Ghulam Muhammad. So yes, that's the correct answer. So the quiz is done. Thank you. Over to Now, Vishwajit and Mohit. Astha. now I would like to call Mr. Sahil Kumar Misra sir for a thank you note. First of all, am I audible, Babu? Yes, sir. Yes, sir, it's audible. Yes. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट जिन्होंने अपना टाइम निकाला, हमारे बच्चे जिन्होंने इतना सुंदर सा इतना प्यारा सा प्रोग्राम किया, पेरेंट्स जिन्होंने अपना टाइम निकाल करके इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया, और रिपब्लिक का एक ट्रू मीनिंग हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए कि हम सब लोग बराबर हैं और बराबर रहते हुए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि रिपब्लिक का ट्रू मीनिंग क्या है, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी चीजें तो हो चुकी हैं। तो मैं जो कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कहना। हमारा देश आजाद तो हो चुका था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन जो असलियत में जो आजादी मिलती है, जिस आजादी की गारंटी मिलती है, जैसे हम लोग होता है ना, कोई भी चीज जो लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि उसमें एश्योरेंस हो, कुछ गारंटी हो। तो सबसे बड़ी गारंटी जो आज हमारे और आपके पास है वो है फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और ये इनैक्ट हमारा हुआ था, ये जो कंप्लीटली लागू हुआ था हमारे पूरे देश में, वो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। इसके इतिहास के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल पे ही सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि ये मीटिंग ऑलरेडी 1 आवर का हो चुका है। तो मैं बहुत शॉर्ट में कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ यूं है कि सबसे पहले बीइंग एन एजुकेटर मैं समझता हूँ कि एक किसी यूथ का और जो टेक्नोलॉजी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आज यूथ के दम पे, टेक्नोलॉजी के दम पे हम कितना कुछ कर रहे हैं। और मैं आपको, मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश जो है वो 100 यूनिकॉर्न्स का देश बनने जा रहा है। यूनिकॉर्न्स हम लोग उसको कहते हैं जो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बिलियनियर्स कंपनी जो होती है, और हमारे देश में बहुत जल्द ऐसे बिलियनियर्स लोग होने वाले हैं। इसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ जो जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप सबको पता है टाटा के जो संस्थापक हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो महिंद्रा के संस्थापक हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जो कई सारे यूथ जो नई नई कंपनियां खोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिन पे कोई भरोसा नहीं दिखाता है उनमें वो लोग भरोसा दिखाते हैं, और धीरे धीरे वो कंपनियां जो है करोड़ों की बन चुकी हैं। और इससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और न जाने कई सारे फायदे हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं चाइना आगे जा रहा है या जो दूसरे देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं आगे? कहीं ना कहीं उसमें जो एक अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो कहीं ना कहीं आपका मिस हो रहा है, वो चीज कम हो रहा है। और वो जितना कम होगा उतना ही बढ़िया होगा। जितना हम क्वालिटी लाइफ जिएंगे उतना ज्यादा हम लोग अपने एजुकेशन पे, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जब हमारी बेसिक नेसेसिटी ही पूरी नहीं होगी तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम लोग कुछ आगे सोच सकें। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आप सारे बच्चों से कि देखते देखते ये जो हम लोग का ट्यूटर मॉन्क इंडिया जो शुरू हुआ था, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने शुरू किया था, सिर्फ एक बच्चों से शुरू किया, और आज कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं इस चीज में। और लोगों के दिमाग में जो ये रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या ही है, क्या ही हो सकता है, और हम लोगों ने ये साबित किया है बीते कुछ, अभी तो 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ है, बीते कुछ महीनों में, कि ट्यूटर मॉन्क इंडिया एक परिवार है और इस परिवार में हम लोग मिलजुल करके सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। आखिरी में ये कहना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं हम लोग किस तरह से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अभी 1 वीक के फ्री ट्रायल्स भी, आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे ट्यूटर मॉन्क और इंडिया, ये 3 चीजें आपको बस सर्च करनी है और आपको शुरू में हमारा रिजल्ट दिख जाएगा। हमारे वेबसाइट पे ना कोई ऐड है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे बुक्स हैं, नोट्स हैं, मटेरियल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा हथियार जो हम यूथ का है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो अंत में मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा सारे लोगों का जिन्होंने आज जुड़ा, टाइम निकाला और हम लोग मिल करके इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर सकें और रिपब्लिक डे का ट्रू मीनिंग हम लोग बहुत जल्द साबित करेंगे और हम दिखाएंगे कि आने वाला देश, आने वाला हमारा भविष्य कितना ज्यादा उज्जवल है। धन्यवाद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन। Every start has an end, so I would like you to stand up and pay respect to our nation by singing the national anthem. अगर संभव हो तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thanks to everyone. Program dismissed.